हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा रिलायंस की। क्यों बात करूंगा, मैं पहले आपको बताता हूं कि मैंने यहाँ पहले कुछ दिन पहले रिलायंस का जब रिजल्ट आया था तो डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब इस यहाँ पे कहीं पे रिजल्ट आया था इस दौरान 22-23 के आसपास, तब मैंने यहाँ पे बताया था कि रिलायंस का जो है ऊपर की ओर खुल सकता है। ये 2150 2160 की यहाँ पे ऊपर वीडियो देखिए। यहाँ पे आप जाके यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए, पूरा एनालिसिस चेक कीजिए। इस जगह पर देखिए, ये सजेशंस में आप क्या रहा है, मैंने यहाँ बताया था कि ये ऊपर का रेसिस्टेंस है। उसके बाद ये 1980 या 1920 बीस 2000 के आसपास ये नीचे तक जाने की इसकी संभावना है। और देखिए वहां से पूरा गिरावट की रैली आई रिलायंस के अंदर, एंड रिलायंस फेल लाइक एनीथिंग, एंड दोज हु वर in the hope of good results and all, they bought it, they were all वो सब स्टक हो गए यहाँ पे प्राइस के साथ, हाई प्राइस पे बाय करने की वजह से। अभी इसने फिर से प्राइस आर्चिंग किया, देखिए यहाँ पे प्राइस आर्चिंग किया। यहाँ पे फिर से जो लोग, जिन लोगों को जो फंसा हुआ था पैसा, ये लोग, दिस इज अ कॉल्ड अ बेयर रैली, दिस इज अ बेयर पार्टिसिपेशन फ्रेंड, दिस इज अ बेयर पार्टिसिपेशन। एंड नाउ दोज हु आर स्टक एट अ हायर प्राइस, these guys sorry these guys who are stuck in reliance for a long term now this actually price arching gave another opportunity for these guys to exit. Friends, remember, the levels appearing in Reliance are not really good. What I'm saying, friends, the levels which are coming in Reliance are not good. It is likely to hit below 2000 first of all below 2000, and then it might, second target will be around 1950. So Reliance is in a bad shape now, friends. Why? I will tell you everything about it. So this actually, I'm expecting that this low will also be broken. This low will also be taken up, and it will break below. Why? I will tell you everything. But just watch the video till end. And there are many videos of those who are new to channel where we are discussing result series, stock analysis series every day. Were very interesting stocks with price action structures. You will get to learn a lot. Go through those videos and you will learn a lot about price action, how to take out the levels, target, and support resistance. So friends, let us go to Reliance, go back first and see what is happening here. So this was the, let's say this is a demand zone, right? Simple concept of demand and supply zone, support resistance we will use. We will not use any indicator, any options, and any altu faltu thing to confuse you guys why it is happening, what this will happen, that will happen. Let us go to straight support and resistance. This was a support. It tried to pump up price, but there are no bulls presence. It came down. Again it tried. This time this was a good way, because it made a new high. It made a higher high. Here it made up because previous high was this. So this support seemed to work, that time, at least that time it seemed to work. Again it came, they see, again it came, and again it made a new high. So this is a higher high too. So that support again worked. But friends, what is happening now for last few weeks, I would say, what we are seeing is it's taking up a resistance in a very narrow range. If I draw this trend line that way, that this way, that will be wrong. So these are the rejections point now. This is that there are three touches already on the trend line. So this is how we make trend line: the first touch and fall, then price arching, second touch, fall, and now it has come for third touch. So this is a trend line structure, you can see here. And now bottom, at the bottom you see there is another trend line coming. So it is coming up to the very narrow zone. Actually it is making a very narrow triangle, wherein it is likely to break below this and come to this zone. Actually first it will come to 19, approximately 1950, and then it might, if breaks, it might come to 1880, which is a previous support or demand zone here. Now let us see if it is what is happening on a weekly chart. So friends, if you see on a weekly chart, there's a clear cut structure evident. you know this is a demand zone. It went up, came down. Similarly, it made a lower high. That means this demand zone is not working efficiently from this point of view. Again it came, but this time it tried to make a higher high, but instead of making a higher high, it made a double top. यहाँ पे इसने डबल टॉप बना दिया, देखिए यहाँ पे डबल टॉप बना दिया। जब सपोर्ट से उठने के बाद कोई स्टॉक डबल टॉप बना देता है ना फ्रेंड्स, तो आप समझ लीजिए कि उसकी कहानी खत्म है। उसकी कहानी खत्म है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी कितनी ब्यूटीफुल बन रही है। सब कुछ रिलायंस में ऐसा इंडिकेट कर रहा है। आप आई डोंट नो व्हाई लोग बाय कर लेते हैं हायर लेवल पे एंड ऑल स्टक हो जाते हैं, जब प्राइस पे इतना क्लियरली दिखा रहा है वहां पे कि कुछ होने वाला नहीं है इसका स्टॉक का भी। फिलहाल कुछ वीक्स तक तो ये एकदम कसा हुआ है इसका मीटर। यहाँ पे देखिए, ये नीचे जाता हुआ आपको डाइव, ये गोता लगाता दिखेगा आपको, जो एकदम भाले की तरह ना, ये जेवलिन थ्रो की तरह इसका थ्रो नीचे आने वाला। अभी देखिए गोल्ड मेडल मिलेगा इसको बेरिश ट्रेंड में कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो फ्रेंड, अगर आप स्ट्रक हैं ऊपर के लेवल पे, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपको 21-30 के आसपास ये मिलता है, तो वहां पे आप या तो एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह करने के बाद, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए थोड़ा और, ताकि अगर ये नीचे की ओर भी आए तो आपको थोड़ा सा तो प्रॉफिट मिले आपको स्टॉप लॉस ट्रेल होने की वजह से। तो ये अभी बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है, और एकदम मतलब आप देखिए कि ये दिखा रहा है, साइन बता रहा है कि मैं नीचे गिरने वाला हूँ, मैं नीचे गिरने वाला हूँ। अब आप चाहे तो रुकिए, चाहे तो जाइए। तो 21-30 के आसपास अगर आपको एग्जिट मिलता है तो आप ले सकते हैं, उसके बाद ये फिर मौका नहीं देगा, बिकॉज ये पिछले वीक का जो कैंडल है ना फ्रेंड्स, ये देखिए इसने एनगल्फ करने की कोशिश किया था इस वाले कैंडल को, बट इंस्टेड ऑफ एनगल्फिंग इट बिकम अ रिजेक्शन कैंडल, अगेन अ साइन इन इटसेल्फ दैट देयर प्राइस बेरिशनेस इज देयर। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही फ्रेंड्स सबसे अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कब होगा, जैसे ही 20-40 का लेवल टूटेगा। The moment friends we see 2040 level is taken out. Remember friends, once it starts trading above 2040, it will start sliding. It will start sliding, and upside now, upside is maximum possible, which is appearing as of now around 2130, sorry 2130। ये अपसाइड इसकी लग रही है जहां तक ये मैक्सिमम जा सकता है। बट ये क्रिटिकल पॉइंट है 20-40, जैसे ही तोड़ेगा ना ये स्लाइडिंग चालू हो जाएगा इसके अंदर। बहुत चांसेस है कि ये स्लाइडिंग चालू कर दे। तो 2000 के आसपास का आप पहले लेवल देखिए, 2020 के आसपास गिरावट, उसके बाद 1950 तक भी ये आ सकता है। तो जो रिलायंस का अभी का करंट का ट्रेंड लग रहा है, इसको हम क्लीन करेंगे और एक बार आवरली चार्ट पे देखेंगे फ्रेंड्स। ये जो कैंडल है ये अपने आप में कहानी है ये, कि इतनी बड़ी गिरावट हो गई है, इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है यहाँ पे। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये क्या करेगा कि ये जो बेचारे सेल नहीं कर पाए, या जो ये रैली में फंसे हुए हैं बायर, उनको निकलने का मौका देगा। तो प्राइस थोड़ा तो इसके मिडल तक तो आएगा, इस कैंडल के यहाँ तक, और फिर यहाँ पे जब रिजेक्शन लेगा इस एरिया में कहीं, जो कि मैंने बोला आपको कि 20-20-30 के आसपास का जो लेवल है, ये देखिए यहाँ पे ये लेवल है अप्रोक्सीमेटली, ये 20-30 का लेवल बैठता है यहाँ पे। तो ये इसलिए लेवल बैठ रहा है क्योंकि, एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, 2020 टू 2030 के आसपास का लेवल इसलिए बैठता है क्योंकि यहाँ पे इसने एक ऊपर की ओर निकलने की कोशिश की थी। ये डोजी जो कैंडल ग्रीन बना है, इसने ऊपर की ओर जाने की कोशिश, सॉरी, ये डोजी कैंडल ने ऊपर की ओर निकालने की कोशिश की थी प्राइस को, लेकिन ये निकाल नहीं पाया। तो उसके बाद शार्प सेलिंग आया यहाँ पे। तो ये कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई के बीच में ये जो एरिया, यहाँ तक एक बार प्राइस आएगा, और फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो ये फिर ये नीचे की ओर गिरना चालू कर देगा। तो फ्रेंड्स, रिलायंस के स्टॉक के प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया, यू अंडरस्टूड द प्राइस स्ट्रक्चर एंड टारगेट्स and where are the support and resistant area. And if you like the video, share with your friends who are holding this stock. If you have any comment suggestion, please put in the comment box. And if you are holding ये stock, अगर आप होल्ड कर रहे हैं, किस लेवल पे आपने होल्ड किया, क्या स्टॉप लॉस है, आप लिखिए मुझे कमेंट में, मैं आपको गाइड करूंगा। फ्रेंड, दिस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए स्टॉक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन, हैव अ गुड डे, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ फ्रेंड।